everyone, welcome to my YouTube channel that is Prose and Poetry Hub. I am very much happy that most of you have subscribed it, and please on your notification button and also subscribe my channel so that you can get the updates of each and every chapter and the poems, as well as I have already started the vocab series and already two videos have been uploaded, that is alphabet A and alphabet B. Okay, so here you see I have started this because English is a subject which is most neglected by the science students as well as commerce arts, because it's a subject which takes a little less attention of our actually. So it's very much important to remember that English is a subject which will always make you feel good, because it will never disappoint you. Okay, if you invest a little bit of time and give a little bit of time to this poems and at least to this chapters, okay, and the poems in this book, then you will definitely be not disappointed, but at the end of the day you will feel that yeah, I at least got a very good marks in this subject. Okay, it's a very scoring subject. Okay, so without any further ado, let's get started. So we are going to start with the summary. Okay, as I promised that I will be giving you summary. Okay, the poetic devices, word meanings, and also the two extracts, right? So two extracts. So first of all, let me start with the summary. Okay, so summary of My Mother at 66. So My Mother at 66 is written by an Indian writer. Okay, who is that? Kamla Das. Okay, so here the Kamla Das, she magnifies the most unnoticed simple events that occur in a certain relationship. Okay, through her beautiful imagery and strong descriptions. Okay, it talks about a daughter bidding goodbye to her mother. Okay, the mother has grown old and the daughter finds it painful to leave her aging, leave her aging mother. Okay, she has a belief that it might be that the next time she will not be able to meet her mother. Okay, but with that feeling she is leaving her mother, and as we know, at the end of the poem she gives a very nice thing that smile, smile and smile. So here she knows the fact that the next in the next meeting she might not meet her mother, but then also she is giving that courage to her mother that again we will meet. Okay, with a strong belief in her that we will meet again. Okay, the mother has grown old and the daughter finds it painful to leave her aging mother behind. She knows that she might not see her mother again. This poem is about the feelings and emotions involved in this kind of situation. Okay, so we have already discussed this poem, okay, in our last video. So now we have already completed the summary, as you know that summary has been completed. So now we will be starting with okay, let's start with the word meanings, right? So the word meanings are little difficult, I would say, because here many things are imaginary. Okay, so let's start with this vocabulary, or we can say the word meanings. Okay, so first word meaning is doze. Okay, what is doze? So doze is a short light sleep or a nap. Okay, when you don't go for a for a huge hour of sleeping, but it's important to see that it is a short light sleep, okay, or a nap. Okay, some of us know, we also tell that let me take a beauty sleep. Okay, most of the girls do that. So doze. So doze means a short light sleep or a nap. Okay, next is ashen. So ashen means what? Ashen means a pale, okay, pale yellowish or grayish color, okay, like ash. As we know, ash color is gray. Okay, gray in color. So lacking that lacking color means when a person gets older, so what happened, that brightness, okay, that youngness, that cheerful, that cheerful brighter tone of the skin also gets grayish. So that is
pale grayish color like ash, lacking color. That is known as ashen. So next is corpse. What is corpse? Corpse is dead body. Okay, corpse is dead body. Okay, next is sprinting. So sprinting, I have not let me do this. Okay, I forgot to highlight it. So what is sprinting? So sprinting means running fast, usually over a short distance. Okay, when you run for a very short distance, that is known as sprinting. But very fast you are running. Okay, you are running very fast. You are running very fast. Now it is spilling. What is spilling? Emerging in large numbers and rapidly moving out. ठीक है, she was referring to whom? She was referring to the children leaving their homes. Okay, with a very joyful, joyfully they were coming out of the homes and was very much excited. Okay, they were having a excitement and youngly, हम कहते हैं कि एक जोश से, ठीक है. So that is what here the poet is making us understand. Next is wan. What is wan? Wan means colorless. Okay, wan means colorless and sickly or dull. Okay, when we have a fever or any disease or any sort of weakness, so that we become colorless. Okay, we don't feel like to do anything. Okay, and we feel very low and colorless. Our facial expressions also changes and we feel very sick and very dull, right? So here it is exact the meaning. So wan means colorless. Okay, next is pale. पेल मीन्स हैविंग लेस कलर देन यूजुअल. यूजुअली हम बहुत ज़्यादा ब्राइटर फील करते हैं, बहुत खुश होते हैं एंड बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है हमारा स्किन. मतलब नॉट इन दैट वे, बट जैसे कि हमारे मुंह में एक रौनक, रौनक कहते हैं ना, वो. तो पेल मतलब क्या होता है? हैविंग लेस कलर देन यूजुअल. मतलब हम जब भी सैड भी होते हैं या फिर हमारा देखना कि मुंह जो है, हम कहते हैं ना मुंह उतर गया है या क्यों तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है. सो दैट मीन्स दैट पेल. सो पेल इज व्हाट? हैविंग लेस कलर देन यूजुअल. ओके, यूजुअली हमारे मुंह में एक रौनक सी होती है, बट देन जब हम थोड़ा लो फील करते हैं तो हमारा जो रौनक जो है वो एकदम डल हो जाता है. वी फील वेरी पेल, राइट. नेक्स्ट इज एक. सो एक मतलब क्या होता है? अ कंटिन्यूअस डल पेन, मतलब फेमिलियर एक, राइट. फेमिलियर एक जो तो ये कैसे पोएम से रिलेटेड है? सो हमारे पोएट ने ये कहा था कि जब भी मैं ये सब के बारे में सोचती हूँ अबाउट दिस थिंग्स, तो मेरा एक फेमिलियर एक जो है वो फिर से जाग जाता है एंड मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, राइट. सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया. ओके, नेक्स्ट हमने वोकेबुलरी कंप्लीट कर लिया है. सो लेट्स स्टार्ट विथ दी पोएटिक डिवाइसेस. ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस एक तो आ जाते हैं. जब हम एक्सट्रैक्ट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्ट्स में मैंने बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स वाले एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं, बट कभी कभी जो है पोएटिक डिवाइसेस से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट. सो वी विल बी डूइंग ऑल द पोएटिक डिवाइसेस. सो टोटल कितने पोएटिक डिवाइसेस है? टोटल पोएटिक डिवाइसेस आर 5 पोएटिक डिवाइसेस, राइट. सो वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी वन इन अ डिटेल वे. ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ऐसे वीडियोज़ आएंगे अभी. ठीक है, आई वॉज नॉट रेगुलर द लास्ट वीक बट नाउ आई विल बी रेगुलर. ठीक है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस में सिमिली. ठीक है, फर्स्ट आता है सिमिली. सो सिमिली बेसिकली क्या होता है? सिमिली को हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, बट क्या करके हम इसको कंपेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस 2 वर्ड्स, दैट इज लाइक एंड एस. ठीक है, लाइक और एस को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं बिटवीन 2 थिंग्स. जैसे कि कैसे इसको यूज़ किया गया है इन दिस पोएम, जैसे कि हर फेस एशन लाइक, ठीक है, दैट ऑफ अ कॉर्प्स. सो इधर लाइक को हमने क्यों यूज़ किया है? लाइक को हमने यूज़ किया है उनके फेस को एक कॉर्प्स के साथ, डेड बॉडी के साथ कंपेयर करने के लिए, राइट. सो हर फेस एशन, ठीक है, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, ठीक है. एशन मतलब पेल फेस, ठीक है, फेस तो पता ही है, और फेस एशन मतलब पेल फेस, राइट. ओके, तो ये क्या कहना चाहता है? व्हाट इट वांट्स टू डिपिक्ट. सो कंपेयर्स द मदर्स ग्रे लाइफलेस फेस टू अ डेड बॉडी टू एम्फसाइज हर फ्रेलिटी एंड अप्रोचिंग डेथ.
ठीक है। तो जो हमारी पोएट है वो अपनी मम्मी की फेस जो ग्रेश हो गई है, पेल हो गई है, ठीक है, लाइफलेस हो गई है, ठीक है, एनर्जी नहीं है ऐसा लगता है, उस फेस को डेड बॉडी, ठीक है, जो कॉर्प्स है उसके उसके साथ कंपेयर करती है विद द वर्ड लाइक, ठीक है, विद द वर्ड लाइक, ताकि वो एम्फेसाइज कर सके कि उनका जो डेथ है वो अप्रोच हो रहा है, वो पास आ रहा है जैसे जैसे वो ओल्ड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाफर। सो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज अ इम्प्लाइड कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और लाइक एज, ठीक है। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है मेटाफर और सिमिली में? सो सिमिली में हम क्या यूज करते हैं? लाइक और एज को यूज करते हैं टू शो द कंपैरिजन बिटवीन टू वर्ड्स और बिटवीन टू पीपल और बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। एंड मेटाफर को हम विदाउट यूजिंग लाइक और एज क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो मैरी चिल्ड्रन है वो स्पिल आउट हो रहे हैं, ठीक है, दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। तो इसमें क्या एक्सप्रेशन शो हो रहा है कि द चिल्ड्रन दे आर स्पिलिंग आउट इज अ, जो स्पिलिंग हो रहा है वो क्या है? एक मेटाफर है फॉर दिस एग्जर्ब, ओके। सो ओवरफ्लोइंग एनर्जी ऑफ यूथ, ठीक है। तो बेसिकली जो चिल्ड्रन है उनको स्पिलिंग के साथ कंपेयर किया है, उनको कहा कि मैरी चिल्ड्रन, जो खुश मिजाज वाले चिल्ड्रन है, वो दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस विद एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमेंस एनर्जी है उनमें। एंड एक्सप्रेशन यही है, द चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट इज अ मेटाफर, ये मेटाफर है, ठीक है, फॉर द एग्जर्ब, ठीक है। ओवरफ्लोइंग एनर्जी ऑफ यूथ, ये शो करता है कि जो यूथ है वो यूथ है ना, बहुत ही कम यंग लोग हैं, तो उनका एनर्जी शो करता है, ठीक है, विच शार्पली ये कॉन्ट्रास्ट करता है विद द क्वाइट डीके ऑफ द मदर। तो बेसिकली हमारा जो मेटाफर है ये इसमें लाइक या एज हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट इधर फिर भी जो है हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बीच में? जो मैरी चिल्ड्रन है जो वो स्पिल आउट हो रहे हैं फ्रॉम द हाउस इन एनर्जेटिक वे, ठीक है, एंड टू द मदर जो बहुत ही शांत है, ठीक है, एंड बहुत ही लाइफलेस है, कोई एनर्जी नहीं है उनमें, एक जो शार्पनेस नहीं है, ठीक है। तो ये शार्पली कॉन्ट्रास्ट कर रहा है क्वाइट डीके ऑफ द मदर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि ट्रीज का स्प्रिंट होना, ट्रीज भी स्प्रिंट कर रहे हैं, राइट। सो इसमें भी क्या एक्सप्रेशन शो किया है? ये भी इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मेटाफर, ये भी एक्ट कर रहा है एज अ मेटाफर, ठीक है। बिकॉज देखो हमारी जो पोएट है वो कहती है कि उनकी जो मम्मी है वो बहुत ही लाइफलेस सी बैठी हुई है उनके बिसाइड, हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, ठीक है, विच शी फेल्ट लाइक अ लाइफलेस कॉप्स, ठीक है। तो उनके साथ वो स्पिलिंग मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउस, इसको कंपेयर किया। साथ में उन्होंने ट्रीज प्रिंटिंग को भी किया था, राइट, ट्रीज प्रिंटिंग को भी किया था कंपेयर। तो ये शो करता है कि जो उनकी मम्मी है वो बहुत ही शांत से बैठी हुई है विदाउट एनी एनर्जी, बट जो ट्रीज है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, वो रन कर रहे हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग, हमें अभी वर्ड मीनिंग्स में देखा था। तो ये हाईलाइट कर रहा है ये पर्टिकुलर एग्जाम नाउ, या फिर हम सॉरी मैंने गलत कहा, तो ये ही शो करता है मेटाफर, राइट। सो मेटाफर क्या है हमने देख लिया। सो एक्सप्रेशन क्या है देख लो एक बार, एक्ट्स एज अ मेटाफर फॉर द रैपिड पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। एज द कार मूव्स, जैसे कार मूव करता है फॉरवर्ड, द ट्रीज सीम टू स्प्रिंट बैकवर्ड्स, ठीक है, हाईलाइटिंग हाउ क्विकली यूथ पासिस, कैसे यूथ जो है वो पास हो रहा है, एंड एज जो है वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे एज जो है इट टेक्स ओवर द यूथफुल जो बिहेवियर है, मतलब यूथ कैसे पीछे जा रहा है और कैसे कैसे एज जो है वो बढ़ता जा रहा है, एंड जैसे जैसे एज बढ़ रहा है जो स्टैमिना है, जो एनर्जी है, जो ब्राइटनेस है, वो सब कम हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन मीन्स वर्ड्स और फ्रेज दैट आर रिपीटेड, ठीक है, टू एम्फसाइज एन इमोशन और क्रिएट अ रिदम, ठीक है। तो हम ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ये क्या है? ये ऐसे वर्ड्स है जो बार बार क्या हुआ है? रिपीट हुआ है, राइट, टू एम्फेसाइज सम इमोशन, कोई इमोशन को एम्फेसाइज करने के लिए या कोई रिदम को अगर हमें एम्फेसाइज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिपीटेशन को। तो रिपीटेशन में क्या होता है? वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि इधर, ठीक है, स्माइल, स्माइल, स्माइल। तो स्माइल, स्माइल, स्माइल में हमने देख लिया कि कैसे जो ये इमोशन शो कर रहा है, ठीक है। जो हमारी पोएट है वो बहुत ज़्यादा सैड है, एंड उस सैडनेस को ये शो करता है स्माइल, 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 कि वो एक
बहुत ही एक फेमिलियर एक के साथ वो फिर से वापस जा रही है, एंड उन्हें ये पता है कि शायद नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी मम्मी से मीट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है. सो देयर इज एन अनसर्टिनिटी बिटवीन दिस, राइट. Okay, next is alliteration. What is alliteration? So the repetition of consonant sound in the same line. जैसे कि smiling and some and see. तो basically ये देखो स word जो है, ठीक है, smiling smiling स, और some स and see. So ये जो स वर्ड जो है वो बार बार क्या हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है. एंड जो एस वाला जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट. इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो बार बार जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज एलिट्रेशन. सो अभी देखो, हमने एक बार देखा कि सिमिली और मेटाफोर में क्या डिफरेंस है. अब हम देख रहे हैं रिपीटेशन और एलिट्रेशन में क्या डिफरेंस है. रिपीटेशन मतलब कि जब वर्ड का रिपीट होना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिपीटेशन कहते हैं. एंड एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना, जिसकी स्माइलिंग, सम एंड सी. तो देखना स जो वर्ड जो स वाला जो साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, राइट. ओके, सो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि वेरिएशंस अपीयर इन द फाइनल गुड बाय. तो फाइनल गुड बाय के टाइम में उन्हें क्या वेरिएशंस आ रहा है उनमें, ठीक है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं इमेजरी. इमेजरी क्या होता है, तो हम कुछ मेंटल पिक्चर्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, राइट. So creating mental pictures using descriptive language. The poet provides strong contrast with the dark imagery of the corpse inside the car versus the bright imagery of the sprinting trees and spilling children outside. तो हमने देखा कि कैसे उन्होंने एक इमेजरी, ठीक है, ये स्पिलिंग चिल्ड्रंस, ठीक है, फिर स्प्रिंटिंग ट्रीज, इनके साथ किसको उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया. उन्होंने अपनी मम्मी का एकदम स्टिल, एकदम स्टेशनरी, मतलब स्टेटिक वे में वो बैठी है, विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी एनर्जी, राइट. तो उसके साथ उन्होंने ये कॉन्ट्रास्ट किया. ओके, सो हमने ये देख लिया. सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द पोएटिक डिवाइसेस. 5 पोएटिक डिवाइसेस मैंने अभी आपको पढ़ाया. सो लेट मी नो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. मैं डायरेक्टली एड्रेस करके बता दूंगी कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. ऑल्दो मैंने समझाया कि सिमिली मेटाफोर में क्या डिफरेंस है, राइट. एंड फिर मैंने ये भी बोला कि रिपीटेशन और एलिट्रेशन में क्या डिफरेंस है. एंड इमेजरी हमने ये भी देखा कि कैसे डार्क इमेजरी को कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है, ठीक है. ओके, सो नाउ वी विल बी डूइंग द लास्ट थिंग, दैट इज द एक्सट्रैक्ट्स. ओके, सो 2 एक्सट्रैक्ट में लाई हूँ, ठीक है. यू विल गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस कि कैसे एक्सट्रैक्ट्स आते हैं. देखो, तो इसमें बेसिकली मैंने एमसीक्यू वाले एक्सट्रैक्ट्स नहीं लाए हैं, ठीक है. एमसीक्यू इज मच मोर ईजियर, बट जब क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये डिफिकल्ट हो जाता है एड्रेस करना आंसर को. हमें पता होता है बट हमें कैसे एड्रेस करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक एक्सट्रैक्ट का एग्जर्प्ट दिया हुआ है पोएम का. तो मतलब हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी कि एकदम मतलब इधर से हमें इधर जो कहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जॉक्ट में जो भी कहा है वो सब एड्रेस करना उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसलिए मैंने ऐसे एक्सट्रैक्ट्स लाए हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है. Okay, so as you can see, this is the extract given. ठीक है, that driving from my parents' home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was old as she looked. ठीक है, तो इतना ही गिवन है. तो एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ इट, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पोएम, राइट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू एंड हु वॉज विथ हर. बहुत ही छोटे क्वेश्चंस, बहुत ही छोटे लाइक 2 वर्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है. एक तो पूछा कि वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग, वो कहाँ ड्राइव कर रही थी, ठीक है. वेयर शी वॉज गोइंग, ठीक है, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. एंड हु वॉज विथ हर. तो देखो, द पोएट वॉज ड्राइविंग टू कोची, वो कहाँ जा रही थी, कोची एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक है. एंड उनके साथ कौन था, उनकी मम्मी जो उनकी बिसाइड बैठी हुई थी, ठीक है. एंड शी वॉज डोजिंग ओपन माउथ, यही कहा है. बट इस आंसर में हमें सिर्फ 2 चीजें एड्रेस करना है, दैट इज दैट द पोएम वॉज ड्राइविंग द पोएट वॉज ड्राइविंग टू दी कोची, कोची वो जा रही थी, ठीक है. एंड दूसरा, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन,
what does the phrase action like that of a corpse signify? तो ये सिग्निफिकेंस वाले क्वेश्चन, एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन ये आते रहते हैं, ठीक है. सो यू नीड टू नो कि सिग्निफाई और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, कि हम कैसे जेन्युइनली क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें, राइट. क्योंकि परफेक्ट वर्ड्स को एक पर्टिकुलर आंसर में देना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू सी, ये जो हमने अभी आंसर देखा वो बहुत ही छोटा था, क्रिस्प था, ठीक है. जो जो पूछा वो हमने एड्रेस कर दिया. बट अगर हम बहुत ज़्यादा घुमाएंगे आंसर को, तो हमारा जो एग्जामिनर होता है या जो हमारा आंसर चेक करता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत ही बोर लगता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा घुमा दिया. अगर हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है तो हमें अच्छा लगता है. ओके, सो व्हाट डज द फ्रेज एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स सिग्निफाई? सो इट सिग्निफाइज, जैसे कि क्वेश्चन में इधर बोल दिया है कि व्हाट डज इट सिग्निफाई, सो आंसर शुड स्टार्ट विद इट सिग्निफाइज दैट द मदर्स फेस वॉज पेल. जो उनकी मम्मी थी उनका जो फेस था वो पेल था, लाइफलेस था, एंड डिवॉइड ऑफ यूथ. मतलब जो यूथ है वो चला गया है, पास्ड अवे, ठीक है. क्लोजली रिसेंबलिंग अ डेड बॉडी. डेड बॉडी मतलब कॉर्प्स. दिस क्रिएट्स अ पावरफुल विजुअल इमेजरी ऑफ एजिंग एंड डीके. कैसे कैसे एजिंग के साथ साथ जो है हमारा बॉडी डीके होता है, हमारे मसल्स, हमें पता है कि मसल्स, बोन्स, ये सब डीके होता है, बट हमारी जो फेस की रौनक है, हमारा जो बॉडी है वो भी बहुत लेस एनर्जेटिक लगता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट रियलाइजेशन कॉज्ड द पोएट्स पेन. तो ऐसे कौन से रियलाइजेशन की वजह से पोएम को जो है, पोएट को जो है, वो पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल एक रियलाइजेशन, मतलब वो उन्होंने क्या ऐसा रियलाइज कर लिया था जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हुआ, राइट. ओके, सो द पोएट पेनफुली रियलाइजेस. देखो क्वेश्चन में रियलाइजेशन कहा गया है, इसलिए हमने आंसर में भी लिखा है द पोएट पेनफुली रियलाइज्ड, ठीक है, रियलाइज्ड दैट हर मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड. उनकी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है, एंड दैट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ हर लाइफ. सो उनको ये पता चल गया है कि उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है, शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड, एंड जैसे जैसे उनकी एजिंग हो रही है, उनका जो सब कुछ डीके होने लगा है, एंड शी इज़ कमिंग नियर टू द एंड ऑफ हर लाइफ. एंड ये बहुत ही पेनफुल रियलाइजेशन है पोएट के लिए, ठीक है. ओके, सो हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट. आई नो कि थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हम कवर अप कर रहे हैं. हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डन कर लिए हैं. सो नाउ द लास्ट थिंग, दैट इज द एक्सट्रैक्ट नंबर 2. एंड देखो इजीली एक्सट्रैक्ट्स जो है वो अगर यू विल सर्च इन द गूगल कि गिव मी 2 एक्सट्रैक्ट्स और गिव मी द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मदर एट 66, यू विल गेट द एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है. तो डू दोज एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली 2 या 3 एक्सट्रैक्ट्स कर लो. तो इससे क्या होगा, यू विल नो कि जस्ट बिकॉज ये पोएम नहीं, बाकी सब पोएम्स का भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, उस पर्टिकुलर एग्जाम से क्या क्या पूछ सकते हैं, राइट. ओके, सो देखो व्हाट डिड द, देखो इधर हमने एग्जर्व देख लिया है, ठीक है. अच्छा, लेट मी रीड द एग्जर्व फॉर यू. सो बट सून put that thought away and looked out a young tree sprinting, the married children spilling out of their homes. तो इसमें वो पूछ सकते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज़ किए गए हैं इसमें, ठीक है. सो ये सब पूछे जा सकते हैं. अच्छा, लेट मी एड्रेस द फर्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट डिड द पोएट लुक आउटसाइड द कार विंडो. ठीक है, जो पोएट है वो विंडो से बाहर क्या देख रही थी. सो शी लुक्ड आउटसाइड टू डाइवर्ट हर माइंड. वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है, जो डिस्टर्बिंग थॉट से वो वाकिफ हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो बोल दिया, हिंदी बोल दिया. तो शी लुक आउटसाइड टू डाइवर्ट, मतलब वो अपने वो जो रियलाइज करी थी पेन, उससे अपने आप को बाहर निकालने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए जो है उन्होंने, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली उन्होंने देखा था, ठीक है, विंडो के बाहर. सो शी लुक्ड आउटसाइड टू डाइवर्ट हर माइंड एंड डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द पेनफुल एंड डिस्टर्बिंग थॉट्स ऑफ हर मदर्स इम्पेंडिंग डेथ. ठीक है, और यू कैन से इम्पेंडिंग अगर नहीं कहना है तो अप्रोचिंग डेथ, राइट. सो इधर भी हमें 2 वर्ड्स मिले, इम्पेंडिंग मतलब अप्रोचिंग, ठीक है, अप्रोचिंग डेथ, जो पास आ रहा है, राइट. ओके, इम्पेंडिंग. ओके, नेक्स्ट इज हाउ आर दी यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एंड व्हाट डू दे रिप्रेजेंट. जो यंग ट्रीज है वो क्या डिस्क्राइब करता है एंड व्हाट डू दे रिप्रेजेंट. ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग.
ठीक है, स्प्रिंटिंग बिकॉज द कार इज मूविंग फास्ट, जो कार है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, इसलिए जो ट्रीज है वो बैकवर्ड फास्टली मूव कर रहे हैं, ठीक है. दे एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूथ, वाइटैलिटी एंड लाइफ. ये शो करता है कि ये क्या क्या शो करता है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ यूथ, ठीक है, वाइटैलिटी एंड लाइफ, contrasting the sharply with the poet's aging mother. Okay. Next is what do the married children symbolize? ये जो married children है ये क्या symbolize करता है? So answer is the children spilling out of their homes symbolizes the energy, joy and effervescence of the youth. ठीक है, तो ये क्या शो करता है, जो मैरिड चिल्ड्रन है वो क्या सिंबलाइज करता है, एनर्जी को, यूथ को, जॉय को, ठीक है, एंड एक बहुत ही जॉयफुल वे में वो बाहर जा रहे हैं, एनर्जेटिक वे में जा रहे हैं. सो ये सब रिप्रेजेंट करता है. एफर्वेसेंस ऑफ यूथ को भी ये शो करता है, ठीक है. अब देखो ये जो बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स आपको पता चले, जैसे कि एफर्वेसेंस हो गया या फिर इम्पेंडिंग हो गया, ये सब जो वर्ड्स है उनको खुद से उनका मीनिंग निकालो एंड यूज दैट इन द आंसर्स, ठीक है, तभी जाके आपकी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ेगी. एंड अगर आपको और वोकैब इंक्रीज करना है अपना वोकैबुलरी, आप खुद एक वोकैब का डायरी मेंटेन करो, ठीक है. ज़्यादा कुछ मत लिखो उसमें, सिर्फ एक मान लो एक छोटा सा कॉपी लो, उसमें जो भी मैंने वोकैब्स इस पर्टिकुलर सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको मिला, जैसे वाइटैलिटी हो गया, या फिर आपको जैसे कि एफर्वेसेंस हो गया, ठीक है, या फिर इम्पेंडिंग हो गया, इन सब का एक लिखो एंड लिख के उनका मीनिंग लिखो. ओके. एंड अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो एक सेंटेंस भी लिख लो, सो दैट यू गेट टू यू कैन लाइक यू कैन जस्ट क्या बोलते हैं इसको, मतलब उससे आपको एक मिल जाएगा कि ऐसे आपको यूज करना है, द वे हाउ टू यूज दैट वर्ड इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस, ठीक है. सो यूज दिस ताकि आपका जो वोकैबुलरी है वो बढ़े, एंड आपका वोकैब जो है और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज दिस एंड एटलीस्ट इन अ डे या फिर मे बी इन अ वीक ऑल्सो, ठीक है, आप एटलीस्ट 10 वर्ड्स कीजिए, यू विल फील गुड, राइट. एंड अपने जो डेली जो कन्वर्सेशंस करते हैं उसमें यूज़ कीजिए. ओके, दैट्स इट. सो नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, दिस पर्टिकुलर सेशन. सो सी, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि टेक टाइम टू इम्प्रूव, ठीक है. बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज नहीं करना है कि हो नहीं रहा है, मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है. बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वोकैबुलरी इतना ईजी नहीं होता, आसान नहीं होता उनके लिए, या फिर वोकैबुलरी उन्हें बोरिंग लगती है, या फिर न्यू वर्ड्स उन्हें सीखने में प्रॉब्लम होता है. बट लेट मी टेल यू कि टेक टाइम टू इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, ठीक है. बट डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूव. अगर आपको किसी को प्रूव करना है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, ओके. आपको इम्प्रूव करना है. देयर इज अ वेरी डिफरेंस बिटवीन इम्प्रूव एंड प्रूव. प्रूव करना खुद इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, ठीक है. आपको इम्प्रूव करना है. जैसे जैसे आप खुद को इम्प्रूव करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, पीपल विल गेट द प्रूफ फॉर दिस, ठीक है. आपको खुद से प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ quote that I have given you, that take time to improve but don't waste time to prove, right? Okay, so by this I'm winding up this session. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, प्लीज राइट दीज डाउट्स इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है. एंड लेट मी सी कि आपको क्या डाउट हो रहा है, ठीक है. एंड ओके, नेक्स्ट मैं क्या लाऊंगी, मैं पोस्ट जो है पोस्ट सेक्शन उसमें बोल दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्या लाना है. एंड प्लीज़ कंप्लीट, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है मदर एट 66 का, प्लीज़ कंप्लीट दैट, एंड फिर आप ये जो वीडियो है इसमें आइए, so that you can link the things, right? Okay, so please do share, like, subscribe and comment, ठीक है, and support कीजिए, ठीक है. Thank you so much. Bye bye.